morning, students. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Students, myself Manoj Kumar Sharma, lecturer in chemistry, Government Senior Secondary School, Rajwadi District, Mandi, Himachal Pradesh. Students, our today's topic is chemical bonding and molecular structure of class 10+1, and today's subtopics are hydrogen bonding, cause of formation of hydrogen bond, types of hydrogen bonds, and then effects of hydrogen bonding. So students, let's start with the first subtopic, that is hydrogen bonding. Students, it was Latimer and Rauschenbusch who introduced the idea of hydrogen bond in 1920. Since ऐसे elements like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो क्या हैं, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है बेटा, जब हम इनको अटैच करते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ टू फॉर्म दिस कोवलेंट बॉन्ड हियर, तो जो आपके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां इस कोवलेंट बॉन्ड का बेटा, दैट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हियर, एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम acquire partial negative charge, whereas this H atom acquires partial positive charge. और this partially positively charged hydrogen atom, this partially positively charged hydrogen atom forms the bond with other highly electronegative atom beta, and this bond is known as hydrogen bond, and that is shown here by the dotted line beta. And this hydrogen bond is weak bond as compared to that of this covalent bond. Again, I'm repeating beta, in hydrogen fluoride molecule, in HF molecule, hydrogen bond जो है, this bond that exists between the hydrogen atom of one molecule and fluorine atom of the another molecule, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं बेटा, that is depicted as below. और ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स. दिस हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा, दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द टू एटम्स. वन एटम which holds the one atom by covalent bond and other atom by the hydrogen bond. And this hydrogen bond here is represented by dotted line, जबकि आपका जो solid line है that represents covalent bond. So बेटा, जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड है, that can be defined as a attractive force which bind hydrogen atom of one molecule with electronegative atom of another molecule. और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या होंगे? F फ्लोरीन एटम, ऑक्सीजन एटम और नाइट्रोजन एटम बेटा, क्योंकि आपकी हाइड्रोजन फॉर्मेशन के लिए, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो आपकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है बेटा, दैट इज कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ऐसे एटम के साथ जो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसका साइज क्या है, छोटा है. और तो ये जो दोनों कंडीशन हैं, दैट इज फुलफिल्ड बाय दीज थ्री एलिमेंट्स बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली. For the formation of hydrogen bonding, the molecule should contain an atom of high electronegativity. मतलब आपका एटम की क्या होनी चाहिए, हाई
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए और जिसका साइज क्या होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशंस हैं, एक तो एटम क्या होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, दूसरा उसका साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एंड दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय द एलिमेंट्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जिनकी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और साइज क्या है, छोटा है। नाउ cause of formation of the hydrogen bond. Students, just see here. Hx is there. X is your electronegative as compared to that of your hydrogen beta, means X is your more electronegative as compared to hydrogen. So that's why this shared pair of the electron is more displaced towards this X beta. That's why this X is acquiring your partial negative charge and hydrogen is acquiring your partial positive charge. Similarly, other molecules also acquiring the same charges beta. So beta, ये जो दो molecules हैं, negative will attract the positive of the other molecule. So means there will be some interaction between these two molecules. So when hydrogen is bonded to strongly electronegative element X, the pair of electron, rather shared pair of electron between the two atoms is shifted towards this electronegative atom beta and acquiring the negative charge. And as a result, this H atom is acquiring your partial positive charge. So बेटा, ये जो आपकी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रहे हैं, इसी की वजह से आपका ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर पोलर मॉलिक्यूल. और इनमें क्या रहेगी बेटा, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. तो नेगेटिवली चार्ज एटम of one molecule will be attracted by the positively charged atom of the other molecule here, and that will form your this hydrogen bond, which is shown here by the dotted lines. और जो बेटा मैग्नीट्यूड है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड का, दैट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड. एंड ये जो मैग्नीट्यूड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इज मैक्सिमम इन सॉलिड स्टेट एंड मिनिमम इन गैसियस स्टेट बेटा. इसका मतलब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड. नाउ टाइप्स ऑफ hydrogen bond. So there are the two types of hydrogen bond. One is your intermolecular hydrogen bond and other is intramolecular hydrogen bond. Inter means in between the molecules beta. Intermolecular hydrogen bond gets formed between the molecules, whereas intramolecular hydrogen bond gets formed within the molecule. So first, that is intermolecular hydrogen bond. Intermolecular hydrogen bond is formed between the two different molecules बेटा. दो different molecules के बीच में आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, दैट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इन केस ऑफ HF मॉलिक्यूल बेटा, दैट इज अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इवन अल्कोहल्स में जो आपका बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. वाटर में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. इंटर मींस इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. सो वी कैन से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स. ये मॉलिक्यूल सेम के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट कंपाउंड्स के भी हो सकते हैं, जिनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉर एग्जांपल बेटा, सी हियर, दिस HF one molecule, this HF second molecule, third molecule, fourth molecule and so on. So
the dotted lines are here in between these two molecules. So beta, this is hydrogen bond. कौन सा bond? Hydrogen bond, but that is of intermolecular hydrogen bond which is getting formed here between the molecules beta. So this was the case of hydrogen fluoride. Now water beta, water में just see this is HOH, this is one molecule, this is other molecule, this is other molecule. So beta यहां भी आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है which is represented by the pink dots beta. This bond is taking place in between the hydrogen of one molecule and oxygen of the other molecule. This is again your intermolecular hydrogen bond. Now alcohols beta, that is ethanol, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH. this so ethanol के बीच में भी आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है. Is that clear? So this is again your intermolecular hydrogen bond. Now students, intramolecular hydrogen bond. Intra means within the molecule beta. This is a orthonitrophenol. Here the hydrogen is orienting towards the oxygen beta here. Means this bond here formed, that is represented by dots over here, that is a hydrogen bond. So this bond is getting formed within the molecule, that is a intramolecular hydrogen bond. और बेटा जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये कब बनता है? व्हेन हाइड्रोजन एटम जो है, दिस हाइड्रोजन एटम दैट इज इन बिटवीन द टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. यहां ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन भी हो सकते हैं या फिर नाइट्रोजन भी हो सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में बेटा. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है that is formed when hydrogen atom is in between the two highly electronegative atoms which are present within the same molecule beta. So here this is the example of intramolecular hydrogen bonding beta, that is orthonitrophenol. So hydrogen is in between the two oxygen atoms. With one oxygen atom it is going to form the covalent bond, where with the other oxygen atom it is going to form the hydrogen bond. Now effects of the hydrogen bonding. So students, जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, that helps in explaining the abnormal physical properties in many cases. Many properties are affected by the hydrogen bond, like dissociation, association of the molecules, high melting and boiling points, solubility, and lower density of the ice than water, and maximum density of water at 277 Kelvin beta. So these are the certain properties which are affected by the hydrogen bond. So we'll discuss one by one. Now dissociation. Since जैसे हमारे जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, मीन्स एक्वस मीन्स पानी में जो आपके सॉल्यूशंस बनते हैं, जैसे मान लो हाइड्रोजन फ्लोराइड है, दैट डिसोशिएट एंड गिव द डाइफ्लोराइड आयन बेटा. हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या होगा, पानी में क्या करेगा, डिसोशिएट करेगा और आपको क्या दे देगा, डाइफ्लोराइड आयन दे देगा इंस्टेड ऑफ फ्लोराइड आयन. तो दैट इज HF2 नेगेटिव. और ये किस वजह से हुआ बेटा? That happened due to hydrogen bonding in HF. और यही चीज आपकी एक्सप्लेन करती है KHF2 के एग्जिस्टेंस की. दिस एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ योर KHF2. एंड सिंस जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट इज यूजुअली लॉन्गर देन द कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर एग्जांपल, वाटर में जो आपका OH बॉन्ड लेंथ है बेटा दैट इज 0.99 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है आपकी 1.77 एंगस्ट्रॉम. सो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो है दैट इज यूजुअली लॉन्गर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट एसोसिएशन. बेटा लेट्स से दिस इज इथेनोइक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड.
These are the two molecules of the ethanoic acid which are going to combine together by hydrogen bond. So these are the green dotted lines बेटा, these are the hydrogen bond. और ये कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. और ये क्या बना रहे हैं? डाइमर बना रहे हैं. डाइमर मीन्स दो मॉलिक्यूल्स जो हैं इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ बेटा. सो हियर oxygen atom of the one molecule and hydrogen atom of the other molecule that is going to form this hydrogen bond. Similarly here, hydrogen of one molecule and oxygen of the other molecule is going to form the hydrogen bond. The molecules of the carboxylic acids exist as dimers. क्यों? क्योंकि the molecules of the carboxylic acid exist as dimer because of this hydrogen bonding sequence. The molecular mass जो होगा बेटा ऐसे कंपाउंड्स का वो क्या रहेगा? अब जब दो मॉलिक्यूल इकट्ठे हो रहे हैं तो क्या होगा? डबल हो गया एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड मास बेटा. फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे आपका यहां इथेनोइक एसिड दे रखा है जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है. अगर आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें तो बेटा इट इज फाउंड टू बी 120. But since its calculated molecular mass is 60. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. इन अ सेंस ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा? हाई रहेगा बेटा. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी हाई. द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड्स लाइक वाटर, NH3 and you can say hydrogen fluoride here, या फिर जिनमें आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, that is due to the fact that some extra energy is required just to break these bonds. क्योंकि अब जब बॉन्ड्स हैं, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स बेटा, सो उनको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो क्या होगा? जो आपके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे? ऐसे कंपाउंड्स के जिनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट विल बी हाई. और ऐसे कंपाउंड विच कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, दे आर सॉल्युबल इन सच सॉल्वेंट्स बेटा. फॉर एग्जांपल, जो आपके लोअर एल्कोहल्स है बेटा, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो है वाटर के साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है. इसीलिए क्या है? अल्कोहल्स दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन कौन से अल्कोहल? लोअर. हायर अल्कोहल क्या होंगे? दे विल बी इनसॉल्युबल. और ये जो सॉल्युबिलिटी है किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा, बिटवीन द वाटर एंड अल्कोहल मॉलिक्यूल्स. सो सी दिस ऑफ इथेनॉल हियर, दिस ऑफ वाटर. सो इथेनॉल का जो ऑक्सीजन एटम है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ऑफ द वाटर, एंड दिस ऑक्सीजन इज गोइंग टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द हाइड्रोजन ऑफ द इथेनॉल बेटा. So, since this ethanol is going to form the hydrogen bond with the water, hence this ethanol, or you can say alcohols, they are soluble in water because of the formation of hydrogen bond. Then since intermolecular hydrogen bonding जो है, that increases the solubility of the compounds in water, while the जो आपकी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, दैट डिक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी बेटा. सो दिस ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल हियर एंड दिस ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल. अगर हम यहां बात करें बेटा, दिस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल is going to form the hydrogen bond with the water molecule, whereas orthonitrophenol cannot form the hydrogen bond with the water. इसका मतलब क्या है बेटा? This paranitrophenol that is soluble in water. अब जबकि और ये क्यों हो रहा है यहाँ? You know, due to this chelation, this is going to form a chelate. Ring is getting formed over here due to this hydrogen bonding. Due to this chelation बेटा, जो आपका OH group है यहाँ, this OH group, that is not available to form the hydrogen bond with the water. Hence, it is not soluble in water. अगर है तो बहुत कम solubility रहेगी बेटा. Whereas here, OH group जो है, that is available for the hydrogen bonding with the water. Hence, it is completely soluble in water. That I have already told you.
low volatility, high viscosity and surface tension. Since ऐसे कंपाउंड जिनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स, सो दे आर लेस वॉलेटाइल. अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस दे आर विल बी लेस वॉलेटाइल, मीन्स दे विल हैव द लो वॉलेटिलिटी. एंड जो आपकी विस्कोसिटी होगी या सरफेस टेंशन होगी बेटा ऐसे सब्सटेंसेस की जिनमें आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट विल ऑल्सो बी हाई. Since Nexus explanation of the lower density of the ice than water and maximum density of water at 277 Kelvin, that is 4 degrees Celsius beta. Since this is the cage-like structure of water in ice beta, that water molecules are held away from each other by the hydrogen bond beta, जो कि यहाँ डॉटेड लाइन से शो किया गया बेटा. और बेटा इन दिस सॉलिड आइस बेटा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या कर रही है, दैट इज गिविंग राइज टू अ केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. और जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स है बेटा, दे आर लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू द 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स. अगर आप यहां देखें, लेट्स से दिस वाज सेंट्रल वाटर मॉलिक्यूल दैट इज सराउंडेड बाय 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली बेटा. वन इज दिस वन, अदर इज दिस वन, अदर इज दिस वन, अदर इज दिस वन. सो हम कह सकते हैं हाँ यहां कि हर एक वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा दैट इज लिंक्ड टेट्राहेड्रली टू द 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स. और इसी की वजह से बेटा जो आपका वाटर है दैट इज हैविंग अ लोअर डेंसिटी देन द वाटर एट 273 केल्विन. और अब डेंसिटी लो होने की वजह से जो आइस जो है आपका दैट फ्लोट्स ऑन द वाटर बेटा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, कम है, दैट्स व्हाई इट इज फ्लोटिंग ऑन द वाटर, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर. और जब हम हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, व्हाट विल हैपन, ये जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड है दे विल कोलैप्स, ये टूट जाएंगे बेटा एग्जैक्टली. और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे. सो इसका मतलब क्या है, जो आपका लिक्विड स्टेट में आपके मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे आर कमिंग क्लोज टुगेदर, जिसकी वजह से आपका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. और डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट योर 4 डिग्री सेल्सियस और यू कैन से 277 केल्विन. नेक्स्ट मींस दिस गोज ऑन अप टू 277 केल्विन बेटा, जब आपकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. लेकिन आफ्टर 277 केल्विन बेटा the increase in volume due to the expansion of the liquid becomes much more than the decrease in volume. मीन्स वॉल्यूम तो डिक्रीज हो जाएगा उसके बाद, लेकिन जो आपका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा दैट विल बी मच मोर एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स बेटा. सो आफ्टर दिस बेटा देयर इज नेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन हीटिंग which means decrease in density. So we can say the water is having maximum density at your 4 degree Celsius. So means उसके बाद आपकी क्या होगी, जब वॉल्यूम आपका बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा लिक्विड का as compared to that of your decrease in volume beta due to the breaking of the hydrogen bond, so आपका again density will decrease. So thank you. Hope students this was clear. Thank you once again.